Hi friends, till now in SHM we had seen that the body is able to oscillate from one end to another end continuously. Okay, let's take an example of a pendulum. पेंडुलम को एक साइड पे डिस्प्लेस किया एंड फिर छोड़ दिया तो विल इट कंटिन्यू फॉर एवर? आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे स्कूल में, तो वॉज द पेंडुलम कंटिन्यूइंग फॉर एवर? चलो पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट नहीं किया हो तो फिर झूले पे तो बैठे ऑन अ स्विंग. व्हेन यू स्टार्ट स्विंगिंग यू गो टू वन एंड देन यू लीव. स्विंग में एक एंड पे जाके फिर छोड़ दो तो डज इट कंटिन्यू फॉर एवर ऑसिलेशन? एसएचएम का डेफिनेशन आइडियली क्या बोलता है? द ऑसिलेशन शुड कंटिन्यू फॉर एवर, बट डज इट हैपन सो? Then what we find actually? What we find is that during the oscillation in the swing or in pendulum, we find that initially oscillation was occurring up to this step, this end point. Then after some time, they go up to this only. Then after some time, they go up to this only. Then this only. You know what actually is happening? What actually is happening? What we find is that the maximum displacement goes on decreasing. As the time passes, maximum displacement goes on decreasing. यानी कि amplitude is decreasing. So what we find is that during the oscillation, in reality, the amplitude of the oscillation goes on decreasing. यानी कि in pure SHM, जो पहले बोलते हैं वो हम लोग क्या बोलते हैं जिसमें continuous forever. In pure SHM, oscillation occurs forever. बराबर है? But in reality, we find that some forces act. यहां पे कौन होगा? पेंडुलम के केस में कौन सा फोर्स एक्ट करता होगा जो इसको डिक्रीज करे, इसके एम्पलीट्यूड को? इट इज द एयर. तो इससे बोलते हैं जब एक्सपेरिमेंट करते हैं पेंडुलम के लिए लैब में तो बोला जाता है कि पंखा बंद कर दो या सांस भी जोर से नहीं लेने के, हवा का मूवमेंट रिड्यूस हो जाए जितना हो सके उतना. तो इन रियलिटी वी फाइंड दैट रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर, रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर एंड चलो झूले में क्या होगा? झूले में तो हवा का असर नहीं होगा, कहीं हम बैठे हैं हमारा मास इतना है कि एयर वुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट, तो उस केस में क्या होगा? तो ले सर वो ऊपर ऑयलिंग प्रॉपर नहीं होता है. स्प्रिंग के केस में नीचे मास लटका है, इट ऑसिलेट्स. इट ऑल्सो इन दैट केस ऑल्सो द एम्पलीट्यूड गोज ऑन रिड्यूसिंग विद टाइम. तो ऐसा क्यों हो रहा है? वहां पे भी एयर नहीं है क्योंकि 500-700 ग्राम लगाया हो तो एयर का तो इफेक्ट आना नहीं है उसमें. So it is the internal resistive force of the medium, resistive force of air, or you can say internal resistive forces of medium. Now such forces are collectively called resistive forces of air or internal, or we call them as damping forces. इनको damping forces भी बोलते हैं. Okay. And due to this, in reality, these exist, and therefore we find that amplitude decreases with time. Here we find that amplitude decreases with time. So such oscillations in which amplitude decreases with time are called damped oscillations. These oscillations are called damped oscillations. यानी कि ideally बोले तो pure SHM के केस में the oscillation should continue forever from given point between the two end point. It should oscillate continuously forever. But we find that in reality these resistive forces exist and due to them the amplitude of the oscillation goes on decreasing. इसको पूरा नाम लिख देता है amplitude of oscillation goes on decreasing with time. Such oscillations are called damped oscillations. अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कैसा क्यों हो रहा है, एम्पलीट्यूड क्यों डिक्रीज हो रहा है? ओके, लेट्स सी व्हाई एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस. तो डैम्पिंग फोर्स की बात करें तो वी शो देम बाय एफडी एंड दिस डैम्पिंग फोर्स डिपेंड्स ऑन स्पीड. जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा डैम्पिंग फोर्स बढ़ता है and that also in direction opposite to the motion. Proportionality हटाएं, constant लगाए तो FD equal to minus B into V, where B is called resistive force coefficient. B is called resistive force coefficient, or it is called damping coefficient. Damping coefficient of medium. It's called resistive force coefficient or damping coefficient of the medium. Okay. So due to this damping force coefficient value depends on the medium. Damping coefficient depends on the medium in which the oscillations are occurring. B का definition बोलते हैं it is FD upon V. Damping force arising per unit speed. Damping force arising in a medium per unit speed is called damping coefficient. and इसका यूनिट क्या आएगा? B का
फोर्स का न्यूटन अपन स्पीड का मीटर पर सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर इज यूनिट। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखें तो डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डैम्पिंग कोएफिशिएंट इज न्यूटन का m1 L1 T minus 2, सेकेंड का T1 एंड नीचे मीटर यानी L1, so it comes out to be m1 L0 T minus 1, that's the unit of damping coefficient, dimensional formula for damping coefficient. Okay, तो ये हो गया damping coefficient के बारे में. The value of damping coefficient depends on the medium in which the oscillation are occurring. अगर एयर में पेंडुलम ऑसिलेट होता, लेट्स कंपेयर द डैम्पिंग कोएफिशिएंट, अगर एयर में ऑसिलेशन होता उसके बदले उसे पानी में ऑसिलेट करवाते, बॉब को एयर के बदले पानी में रखते तो फिर ऑसिलेशन में फर्क पड़ता, बराबर है। पानी के बदले हनी में रखा होता तो हनी में, शहद में, तो फर्क पड़ता। द डिफरेंस विच वी सी फ्रॉम वाटर सॉरी एयर टू वाटर टू हनी, दैट इज द डैम्पिंग कोएफिशिएंट। तो डैम्पिंग कोएफिशिएंट जितना मीडियम का डेंसिटी ज्यादा, जितना मीडियम का ऑपोजिंग नेचर ज्यादा, उतना डैम्पिंग कोएफिशिएंट ज्यादा। ओके, समथिंग लाइक विस्कोसिटी। ओके, तो हियर डैम्पिंग कोएफिशिएंट opposes the motion. It shows the tendency of the medium to oppose the oscillations. Okay, अभी ऑसिलेशन के कारण क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। क्यों एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो सपोज SHM इज अकरिंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एंड पॉइंट, नेगेटिव एंड पॉइंट। बॉडी को डिस्प्लेस करके पॉजिटिव एंड पॉइंट की तरफ। नाउ वी नो दैट मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होती है, पॉजिटिव पे मैक्सिमम होती है, एंड पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो बॉडी को साइड में डिस्प्लेस करके फिर छोड़ देते हैं। तो एज द बॉडी रिटर्न्स इट्स स्पीड इंक्रीजेस, मैक्सिमम टू सॉरी स्पीड डिक्रीजेस, ओ सॉरी एंड पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होती है, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। तो एज द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम द एंड पॉइंट, द वेलोसिटी इंक्रीजेस and hence FD, damping force increases. So body finds tough to move against the damping force, क्योंकि as the body returns towards the mean position, its speed increases, therefore damping force acting on it increases. Damping force बढ़ेगा तो उसको मुश्किल पड़ेगा जाना। तो in order to continue the motion, the body will be working against the damping force. अगर बॉडी वर्क करेगी तो अपनी एनर्जी यूटिलाइज करेगी, एंड उसकी एनर्जी यूटिलाइज करेगी तो उसकी टोटल एनर्जी विल डिक्रीज, एंड वी नो दैट total energy is proportional to square of amplitude, therefore amplitude decreases. Okay, so as the body returns from the end point towards the mean position, its velocity increases, therefore damping force acting on it increases. In order to continue motion against that damping force, body has to utilize its own energy, and hence total energy of the body decreases. We know that total energy depends on square of amplitude, तो एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज होगा। इसीलिए वी फाइंड दैट जो एनर्जी ऐसे ऑसिलेटर के पास थी वो धीरे धीरे कम होती जाती है, इससे उसका एम्पलीट्यूड भी कम होता जाता है, एंड अल्टीमेटली इट स्टॉप्स, द बॉडी स्टॉप्स। ओके, सो दैट इज द इफेक्ट ऑफ डैम्पिंग फोर्स। दिस इज द रीजन व्हाई डैम्पिंग अकर्स। यहाँ पे हमने थोड़ी बातें डैम्पिंग फोर्स के बारे में कर ली। इज इट क्लियर? अब चलते हैं आगे। डैम्पिंग फोर्स में जो ऑसिलेशन है उसको ग्राफिकली समझते हैं। चलो डैम्प्ड ऑसिलेशंस को ग्राफिकली समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। यह टाइम ले लिया, बराबर है। ये पॉजिटिव एंड पॉइंट और ये नेगेटिव एंड पॉइंट, ये मीन पोजीशन। अगर प्योर एसएचएम होता तो एम्पलीट्यूड मेंटेन रहता कांस्टेंट, साइड में ले जाके फिर छोड़ दिया तो यहां से मोशन शुरू करते। तो अगर ये प्योर एसएचएम होता तो द मोशन का एम्पलीट्यूड वुड रिमेन कांस्टेंट एंड द ग्राफ वुड बी लाइक दिस। जो हमने आगे देखा था डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का, graph would be like this. But what is seen during the oscillation, okay, as the time passes amplitude goes on decreasing, amplitude decreases with time. तो एंड पॉइंट से निकला, जब मीन पोजीशन पे पहुंचा तब थोड़ा वक्त गुजर गया, इसे डैम्पिंग फोर्स का इफेक्टिवनेस आ गया, इसे नॉट बी एबल टू गो टू दैट मच एंड पॉइंट एंड रिटर्न बैक अर्लियर, थोड़ा जल्दी वापस मुड़ जाएगा। ओके, एंड फिर पहुंचा मीन पोजीशन पे, अब दूसरी तरफ स्टिल मोर टाइम हैज पास्ड, एम्पलीट्यूड विल स्टिल डिक्रीज विद अ ग्रेटर अमाउंट, and so on, ultimately it stops, बराबर है। तो ये देखने में ग्राफ,
तो अगर ये प्योर एसएचएम होता तो दिस डॉटेड लाइन ग्राफ वुड बी देयर, अगर ये प्योर एसएचएम होता तो दिस डॉटेड लाइन ग्राफ वुड बी देयर, बट ड्यू टू डैम्प्ड ऑसिलेशन वी फाइंड दैट द ग्राफ इज दैट ऑफ बोल्ड लाइन। एंड अगर इस बोल्ड लाइन्स को ध्यान में देखो तो एंड पॉइंट यानी कि एम्पलीट्यूड, ये क्या एंड पॉइंट है, यहाँ पे ये और ये एंड पॉइंट है, इट डिक्रीजेस, बराबर, ये एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग, so this is what is seen, यानी this line shows decrease in amplitude with time, decrease in amplitude with time, this dotted line graph shows decrease in amplitude with time, okay। तो यहाँ पे देखने मिलेगा time interval decreases, as well as we can find that एक कंप्लीट ऑसिलेशन यहाँ से शुरू किया यहाँ तक was periodic time t प्योर एसएचएम में, बराबर है। आप देखो तो एक एंड पॉइंट से दूसरा एंड पॉइंट, ये एक ऑसिलेशन का टाइम भी बढ़ गया, तो टाइम ऑल्सो इंक्रीज, पीरियडिक टाइम भी बढ़ जाता है, टी के बदले टी डैश हो गया। एक वेव देखो यहाँ से यहाँ तक, तो प्योर एसएचएम के लिए दिस वाज द पीरियडिक टाइम, बट डैम्प्ड ऑसिलेशन में देखो तो यहाँ से यहाँ तक एम्पलीट्यूड टाइम हैज इंक्रीज्ड, एक ऑसिलेशन का टाइम बढ़ गया, यानी कि इन केस ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन आल्सो इंक्रीजेस, पीरियडिक टाइम आल्सो इंक्रीजेस, दैट मींस ऑसिलेशन बिकम्स स्लो, एम्पलीट्यूड तो कम होता है, साथ साथ में ऑसिलेशन स्लो भी हो जाता है डैम्प्ड ऑसिलेशन में। सीधी सी बात है, अगर ऑपोजिंग एयर होगा, हम लोग साइकिल चलाते हैं, सामने से हवा आ रही है तो हमारी स्पीड भी कम हो जाती है एंड डिस्टेंस पर भी कम हो जाता है, वैसे ही यहाँ पे भी एज द डैम्पिंग फोर्स अकर्स, डैम्पिंग फोर्स affects the motion, we find that amplitude goes on decreasing as well as the periodic time also increases, यानी कि ऑसिलेशन becomes lower। ये इतनी बातें हुई डैम्प्ड ऑसिलेशन के सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में, ये शॉर्ट नोट पूछा तो इतना अपने को नोट करने का along with this graph। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं एंड फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं, तो हमें पता लगेगा क्या एक्चुअली डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है, ओके। Here by differential equation we mean an equation involving differentials, okay। डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लाना है, तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं, फॉर अ सिस्टम परफॉर्मिंग डैम्प्ड ऑसिलेशंस फोर्सेस एक्टिंग आर, कौन कौन से फोर्स लगते हैं वो देखते हैं, लिस्ट आउट करते हैं। पहला विल बी रिस्टोरिंग फोर्स, जो एसएचएम करवाता है वो, एंड इस रिस्टोरिंग फोर्स को हम लोग बताते हैं एफ से, विच इज माइनस के एक्स, अलग एक्स डायरेक्शन लेते हैं तो माइनस के एक्स। फिर दूसरा फोर्स लगता है रेजिस्टिव फोर्सेस, डैम्पिंग फोर्स जो थे रेजिस्टिव फोर्स, एंड विच इज गिवन एज एफ आर इक्वल एफ डी इक्वल टू माइनस बी वी, बराबर है। तो देयरफॉर टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम एफ विल बी इक्वल टू माइनस के एक्स माइनस बी वी, टोटल मारा दोनों का, ओके। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, F is equal to ma, and where ma is d square x by dt square, ये हमें मालूम, ओके। नाउ इधर v को क्या लिखेंगे, अच्छा वी कैन राइट हियर एज माइनस के एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स बाई डी टी, स्पीड के लिए डी एक्स बाई डी टी लिखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में। अब ये दो फॉर्मूला हो गए फोर्स के, लेट्स से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बोथ आर फॉर्मूला फॉर फोर्स, तो इक्वेटिंग 1 and 2 what we get is m into d square x by dt square is equal to minus kx minus b dx by dt। अब x वाले सारे टर्म्स लेफ्ट साइड पे लेते हैं, x एंड डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, तो उनको लेफ्ट साइड पे लेते हैं, एंड वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल। यहाँ पे देखो तो डिफरेंशियल है ही नहीं इस टर्म में, इसमें है पावर में 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया, पावर में 2 है तो सेकेंड ऑर्डर हो गया। This power में 2 means it's not the square of d, it is second order differential, बराबर है, second order first order ने zeroth order, left side पे लेते हैं, therefore m into d square x by dt square plus b into dx by dt plus kx equal to 0, ओके। अब हाईएस्ट ऑर्डर का अकेला छोड़ देता हूँ डिवाइडिंग बाय m, तो what you get is d square x by dt square plus b by m dx by dt प्लस a by m इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए, ओके। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिला डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए।
अब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन यानी फॉर्मूला फॉर एक्स हो जाएगा। ये इक्वेशन में वेरिएबल कौन है? एक्स। इट इज और ये डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स का रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स का रिस्पेक्ट टू टाइम एक्स ओनली। ओके, यहाँ वेरिएबल एक्स है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें। सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मींस फॉर्मूला फॉर एक्स। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन एज x इक्वल टू a0 e रेज टू माइनस bt बाई 2m इंटू साइन कॉस ऑफ ओमेगा डैश t प्लस फाइव। ओके, ये फॉर्मूला है इसका सॉल्यूशन। यहां पे फाइव तो इनिशियल फेज हो गया, ओमेगा डैश इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड इट इज गिवन एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम ऑसिलेशन। नाउ प्योर एसएचएम के केस में क्या था एंगुलर फ्रीक्वेंसी? तो वी नो दैट ओमेगा वाज रूट के बाय, कहां से आया? k इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पर से, k इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पर से आया, ओमेगा इज रूट के बाय। डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या आता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा डैश इट्स रूट के बाय तो है माइनस b बाई 2m होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ओमेगा डैश एंगुलर फ्रीक्वेंसी का हो गया। इसी को अगर लिखें तो इसको राइट साइड पे सिंपलीफाई करते हैं, तो रूट ऑफ ये 4m स्क्वायर एंड m है, तो 4m स्क्वायर को एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 4m के माइनस बी स्क्वायर एंड ओमेगा डैश को लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी डैश। तो देखो पीरियडिक टाइम क्या बन जाएगा डैम्प्ड ऑसिलेशन का? t इक्वल टू, नहीं तो फिर इसे हम टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ 4m स्क्वायर अपॉन 4m के माइनस बी स्क्वायर। ये पीरियडिक टाइम का फॉर्मूला हो गया, बराबर है। जो प्योर एसएचएम में क्या था? t वाज 2 पाई अंडर रूट m बाई टी, उसके बदले ये बन जाता है। अब इन दोनों का कंपैरिजन का, तो पीरियडिक टाइम के फॉर्मूला से कंपैरिजन थोड़ा तकलीफ वाला है, इसलिए हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं ओमेगा को। ओमेगा वाज रूट के बाय, यहाँ पे रूट के बाय के बाद माइनस समथिंग एंड वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पॉजिटिव होगा हमेशा, तो हमेशा माइनस ही होगा, यानी ओमेगा डैश विल बी लेस देन ओमेगा, बराबर है। तो रादर देन गोइंग फॉर पीरियडिक टाइम फॉर्मूला, लेट अस डिस्कस इट दिस वे कि ओमेगा डैश इज फाउंड टू बी लेस देन ओमेगा, तो देयरफॉर 2 पाई बाय टी डैश इज लेस देन 2 पाई बाय टी। 2 पाई उठ गया, इनवर्स करो तो टी डैश इज बिगर देन टी, इनवर्स करेंगे तो सिंबल ग्रेटर देन का लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, तो टी डैश इज ग्रेटर देन टी, यानी कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में पीरियडिक टाइम इज मोर एज कंपेयर टू पीरियडिक टाइम ऑफ प्योर एसएचएम, वो हमने देखा था ग्राफ में, बराबर है। ये तो हो गया पीरियडिक टाइम के बारे में। और आगे बढ़ते हैं, तो ये फेज टर्म है, दिस इज द फेज टर्म, फेज हो गया, ये फेज है तो ये फेज टर्म बन गया एंड फेज टर्म का कोएफिशिएंट हमेशा एम्पलीट्यूड होता है। कंपेयर करें प्योर एसएचएम में तो x वाज a cos ओमेगा t प्लस 5, तो a के बदले क्या आया a0, यानी एम्पलीट्यूड हो गया a0 e रेज़ टू माइनस bt बाय 2m। देयरफॉर एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन, कंपैरिजन से देखें तो एम्पलीट्यूड ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या आएगा a0 e रेज़ टू माइनस bt बाय 2m। अब प्योर एसएचएम में देखो तो इट वाज a, नो वेरिएबल इन्वॉल्व, कांस्टेंट था, यहाँ पे वेरिएबल टाइम इज इन्वॉल्व, तो इट इज चेंजिंग विद टाइम। इससे बोलेंगे एम्पलीट्यूड एट टाइम t ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन एट टाइम t। ओके, इट इज एम्पलीट्यूड एट टाइम t एंड कैसा चेंज हो रहा है? टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा दिस होल पावर विल डिक्रीज, क्योंकि माइनस साइन है, तो दिस होल वैल्यू विल डिक्रीज, द एम्पलीट्यूड विल डिक्रीज। thus we say that amplitude decreases, power में exponent में variable, तो decrease exponentially with time, amplitude decrease exponentially with time, okay। एंड वो भी कैसा डिक्रीज होगा? ग्राफिकली बताया तो कुछ ऐसा बनेगा with time। let's see the amplitude, initially amplitude a0, ये a0 क्या है? a0 is initial amplitude एंड एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है, तो इसको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, इनिशियल और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ओके, इनिशियल और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये इनिशियल एट टाइम t इक्वल 0 a0 है एंड फिर गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड बिकम्स एंड टचेस 0 एट इंफिनिटी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिक्रीज है। ये ग्राफ यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज को इंडिकेट करता है। तो ये हमने देखा था कि डॉटेड लाइन का जो ग्राफ लिया था एम्पलीट्यूड का, वो यही था। ओके, तो दिस इज अ सॉल्यूशन जिसमें a0 इज इनिशियल और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्योंकि बाद में तो एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। सो दिस x में ये टर्म एम्पलीट्यूड हो गया, a0 इनिशियल एम्पलीट्यूड, e इज अ कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम और नेपियर्स कांस्टेंट, एंड इसकी वैल्यू 2.718 है। याद होगा हमने थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में बेस कन्वर्जन देखा था लॉग में,
बेस ई से बेस 10, तो लॉग का जो बेस ई था वो नेचुरल बेस था एंड ये वही ई है, इसको नेपियर्स कांस्टेंट ही बोलते हैं, 2.718 है। ऊपर बी इज द डैम्पिंग कोएफिशिएंट, टी इज द टाइम, 2 एंड एम इज द मास ऑफ द ऑसिलेटर। ओके, तो ये हो गया कंप्लीट रिगार्डिंग सॉल्यूशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, तो ये क्या देखने मिला, प्योर एसएचएम था, आइडियल केस जिसमें ऑसिलेशन अकर्स फॉरएवर, ये हमने आगे प्रूव भी किया था। बट इन रियलिटी एयर तो एवरीवेयर प्रेजेंट, तो एयर का इफेक्ट तो आएगा ही, एज वेल एज मीडियम, इंटरनल रेस्ट ऑफ द मीडियम आल्सो कम्स, तो ये दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं ऑपोजिशन में एंड दे बिकम द रेजिस्टिव फोर्सेस, एंड ड्यू टू दिस रेजिस्टिव फोर्सेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड डिक्रीज होके अल्टीमेटली रुक जाता है आफ्टर लॉन्ग टाइम। इसे पेंडुलम को जब भी ऑसिलेट कराओ, वी फाइंड दैट इनिशियल ऑसिलेशन के बाद धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है एंड अल्टीमेटली स्टॉप। झूले पे बैठे हो तो सेम थिंग यू कैन ऑब्जर्व मोर बेटर। क्लियर? तो ये हो गया रिगार्डिंग डैम्प्ड ऑसिलेशंस। जस्ट गो थ्रू दिस। So friends, the story was going like this. When we displace a body from its mean position from to one endpoint and then release, it starts performing SHM and that is called pure SHM. बराबर है? तो पहले आता है pure SHM. इस pure SHM को it's also called as natural oscillations. इसको natural oscillation भी बोलते हैं and इस natural oscillation की अपनी एक frequency होती है, natural angular frequency. Natural angular frequency given as omega 0 and which is nothing but root k by m. This omega 0 is root k by m, natural angular frequency. ये प्योर एसएचएम हो गया। इट्स प्योरली एन आइडियल केस, ये तो हमने देखा था। क्यों? क्योंकि इन रियलिटी resistive forces act, in reality resistive forces are present. Our resistive force is present, and therefore what happens is, therefore amplitude of oscillation, amplitude decreases with time, therefore amplitude decreases with time, and such oscillations are called damped oscillations. बराबर है? यानी हुआ क्या, बॉडी को छोड़ दिया एंड फिर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, इट परफॉर्म्स एसएचएम, बट डैम्पिंग फोर्स के कारण उसका एम्पलीट्यूड गोज ऑन डिक्रीजिंग। ये तो अच्छा नहीं लगता। सिचुएशन कैसे है, एक झूले पे झूल रहे हैं, ये सपोज ये पेड़ की डाल है जहां पे हमने एक झूला लटकाया एंड इसके ऊपर हम लोग बैठते हैं एंड हम लोग झूला झूल रहे हैं यहाँ पे, बट डज द स्विंग कंटिन्यू फॉर एवर? नहीं, धीरे धीरे उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, हमें अच्छा नहीं लगता। तो हम क्या करते हैं, या तो हम लोग खुद अपने पैर से धक्का मारेंगे, यानी जब भी यूं जाएगा फिर वापस आएगा तब धक्का मारेंगे एंड फिर यूं जाएंगे, फिर यूं जाएंगे, वापस आएंगे तब धक्का मारेंगे, वापस आते तक धक्का मारेंगे। फिक्स टाइम जाने का, धक्का मार के यूं जाने का, फिर आगे जाने का, फिर वापस आने का, तब धक्का लगेगा। व्हेन यू आर रिटर्निंग लाइक दिस, एट दैट टाइम यू पुश द ग्राउंड एंड यू फाइंड दैट you get the speed or you get the amplitude maintained constant. या फिर tell someone, ask your friend, और जनरली बच्चे थे तब तो पेरेंट, मैं फादर, यहाँ धक्का मार रहे होते हैं, यानी जब जब स्विंग आएगा धक्का मारा जाएगा, एट द एंड पॉइंट आओगे तब धक्का मारेंगे, फिर यूं गए फिर वापस आए फिर धक्का मारा, फिर यूं गए फिर वापस आए फिर धक्का मारा। यानी कि धक्के की जरूरत तो पड़ती है, अपने पैरों से मारो या किसी को खड़ा रखो। यानी कि व्हाट, इन ऑर्डर टू मेंटेन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट we require external force, external force required। अभी external force भी देखो तो एक टिपिकलिटी है, रिमार्केबल फोर्स है। क्या कि जब भी आप यहाँ आते हो तब फोर्स मारते हैं, फिर यहाँ आते हो फिर वापस आते हो तब फोर्स मारते हैं, फिर यहाँ आते हैं तब फोर्स लगाते हैं। फोर्स इज ऑलवेज अप्लाइड एट अ फिक्स टाइम। झूला गया वापस आया तब फोर्स लगाया, फिर झूला गया वापस आया तब फोर्स लगाया, यानी ये फोर्स फिक्स टाइम इंटरवल पे अप्लाई किया जाता है। मतलब दिस फोर्स इज पीरियोडिक इन नेचर, this force is periodic in nature, यानी in order to maintain amplitude constant periodic nature में फोर्स लगाना पड़ेगा। हाँ, ऐसा तो है नहीं धक्का मारते मारते साथ में गए फिर वापस आए, फिर धक्का मारते मारते साथ में गए वापस आए, नहीं, वो तो यहीं खड़े खड़े धक्का मारा, जाके वापस आओगे फिर धक्का मारेंगे, यानी एट अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल द फोर्स इज रिपीटेड। सच फोर्स कॉल्ड एक्सटर्नल periodic फोर्स। यानी कि डैम्प्ड ऑसिलेशन के कारण एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो टू मेंटेन एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, टू मेंटेन amplitude constant, external periodic force is required,
external productive force required. And the oscillations now occurring under the influence of external productive force, these oscillations are called forced oscillations, यानी जबरदस्ती कराए हुए oscillations. These oscillations are called forced oscillation. अभी जो एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स है उसको कैसे डिनोट करेंगे, तो वी शोड बाय एफ एक्सटर्नल इक्वल टू सम कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 0 sin ओमेगा टी. यहाँ पे ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स. ये ओमेगा 0 नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी इसकी, ये ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स, यानी जो फोर्स दे रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, वो फोर्स दे रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऑसिलेशन आर करेंगे. सी नेचर इट वाज हैपनिंग बट ड्यू टू डैम्पिंग फोर्स इट वाज डिक्रीजिंग. डैम्पिंग फोर्स के कारण ये डिक्रीज हो रहा था. फिर क्या किया हमने, एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स अप्लाई किया तो उसके कारण एम्पलीट्यूड मेंटेन हुआ कांस्टेंट. एम्पलीट्यूड मेंटेन कांस्टेंट क्यों, बिकॉज़ ऑफ एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स. तो ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स, द ऑसिलेशन व्हिच आर अकरिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस. द ऑसिलेशंस अकरिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स आर कॉल्ड फोर्स्ड ऑसिलेशंस. बराबर है. अब इस फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में एम्पलीट्यूड किस पर डिपेंड करता है, यानी पहली बात तो यहाँ पे सिस्टम अपनी नेचर फ्रीक्वेंसी छोड़ के एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स की फ्रीक्वेंसी गेन करता है. इन केस ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन सिस्टम अपनी नेचर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट हो रहा था वो बंद, उसकी जगह ये जितनी फ्रीक्वेंसी धक्का मारेगा उतनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होगा, यानी सिस्टम अपनी नेचर फ्रीक्वेंसी छोड़ के एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स की फ्रीक्वेंसी गेन करता है. सेकेंडली एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन is found to be inversely proportional to difference of squares of natural frequency and external product force की frequency. इन दोनों के डिफरेंस पर डिपेंड करता है. ये एम्पलीट्यूड डिफरेंस पर डिपेंड करता है. ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर. अब यहाँ पे देखो तो डिफरेंस ओमेगा जीरो, ओमेगा माइट बी ग्रेटर देन ओमेगा जीरो या लेस देन ओमेगा जीरो. ओमेगा जीरो क्या है, सिस्टम की नेचर फ्रीक्वेंसी है. सिस्टम नेचर फ्रीक्वेंसी भूल गया, उसके लिए एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑसिलेट हो रहा है. अब नेचर फ्रीक्वेंसी से एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. दैट डजंट मैटर. गैप कितना है, अगर दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, यानी सिस्टम की नेचर फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स की फ्रीक्वेंसी दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, तो डिफरेंस विल बी बिगर, सो एम्पलीट्यूड विल बी स्मॉलर. पर अगर गैप कम है, यानी एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स की फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम नियर टू नेचर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटर, तो उस केस में नियर टू है, गैप कम होगा, ज्यादा या कम, पर गैप कम होगा. वैल्यू में बी बिगर, में बी स्मॉलर, बट द गैप इफ इट इज स्मॉलर देन एम्पलीट्यूड इज बिगर. गैप इफ इट इज स्मॉलर देन एम्पलीट्यूड इज बिगर. इन केस इफ ओमेगा बिकम्स इक्वल टू ओमेगा जीरो, यानी कि एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स की फ्रीक्वेंसी नेचर फ्रीक्वेंसी जितनी हो जाए एग्जैक्ट, तो क्या होगा उस केस में, उस केस में एम्पलीट्यूड बिकम्स वेरी लार्ज. एम्पलीट्यूड टेंड्स टू इंफिनिटी एंड सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड रेजोनेंस. इसको बोलते हैं रेजोनेंस. ओके, ये है रिगार्डिंग रेजोनेंस. अब ये सिचुएशन है ना जो देख रहे हैं हम लोग, ये पूरी की पूरी हमारी कहानी है. पूरी की पूरी फोर्स ऑसिलेशन हमारी कहानी है. क्या सिचुएशन है, हम लोग पढ़ाई करते थे बचपन में अपने नेचर फॉर्म में. बचपन में हम लोग ट्यूशन नहीं रखते थे और नेचर फॉर्म में पढ़ते थे. स्टैंडर्ड 4th 5th 6th तक, 6 नहीं 7 तक भी कई लोगों ने बहुत अच्छे स्कोर किए. 90% नॉर्मल चलते थे. पेरेंट बोलते थे बच्चा हमारा लड़का बहुत इंटेलिजेंट था जब 7 तक. तो फिर 8th में आया. अच्छा 7 तक क्या होता था कि पेरेंट्स यूजुअली गाइड करते, उसमें मम्मा सबसे ज्यादा साथ में रहती थी एंड प्लान आउट करती, सब कुछ करती थी, हेल्प करती तुमको. पर 8th में आते हो तब क्या होता है, मैथ साइंस ऐसा हो जाता है कि मामा की कैपेसिटी के बाहर हो जाता है. मैथ साइंस के अप्रोच हर साल बदलते हैं, 2-2 3-4 4 साल में बदलते हैं. तो पेरेंट्स आर नॉट एबल टू गो थ्रू दोज अप्रोच. एज वेल एज द मैथ्स बिकम्स लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड मोर डिटेल्ड. तो उस केस में पेरेंट्स की कैपेसिटी निकल जाती है. तो वो क्या करते हैं, फिर 8th में बोलते हैं तो अपने आप कर, यूं भी बड़ा हो गया, खुद पे तो आना पड़ेगा, तो सेल्फ पे छोड़ देते हैं. 8th में देखते हैं तो यूजुअली रिजल्ट डाउन होता है. 7 के कमरे में 8th में रिजल्ट डाउन होता है. 9th में भी थोड़ा डाउन होने लगता है, तो पेरेंट्स को लगता है तो गड़बड़ हो गई, चलो ट्यूशन लगाओ. तो 9th में, मिड 9th में ट्यूशन की आपकी बातें शुरू होती है. 10th में आपके लिए बहुत जोरदार टीचर ढूंढ के रखे जाते हैं. बराबर है. 10th में ट्यूशन टीचर रख लिया, पढ़ लिया. 11th में आ गए, अब 11th में साइंस स्ट्रीम ले लिया. नाउ व्हाट वी फाइंड इज दैट 11th इज मोर टफ एज कंपेयर टू 10th. पेरेंट्स क्या करते हैं, ढूंढने निकलते हैं बेस्ट ट्यूशन टीचर इन द एरिया. व्हाई, सो दैट दे कैन हेल्प, द ट्यूशन टीचर कैन हेल्प देयर चाइल्ड इन ऑर्डर टू स्कोर वेल. क्यों,
अब चाइल्ड अपने आप नहीं पढ़ सकता, इसीलिए क्योंकि 9 से उसको आदत पड़ गई ट्यूशन की, 10th के बाद वो अपने आप खुद पे पढ़ाई नहीं करेगा। 11th में द पर्सन रिक्वायर ट्यूशन। अगर मान लो 11th में नहीं भी किया कि चलो खुद कर लेंगे, तो दिवाली के आसपास तक उसको पता लग जाता है कि भाई मेरी तो गड़बड़ है, पेरेंट्स को ही ख्याल आ जाता है कि गड़बड़ हो रही है, तो दे सर्च फॉर अ ट्यूशन टीचर। अब सिचुएशन क्या था, प्योर एसएचएम का 7 तक ट्यूशन की आदत लगी, क्यों? क्योंकि 8th के बाद 8th में आने पे बच्चों में फिजिकल चेंजेस आते हैं, सेकेंडली मेंटालिटी साइकोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, इमोशनली देयर सिस्टम चेंजेस, क्योंकि 8th यानी इट्स अ स्टेज ऑफ एडोलेसेंस where many changes in the body as well as emotions come, and due to that the children are normally deviated from their path, resistive force decreasing, उसके कारण उनका स्कोरिंग कम होने लगता है, have to decrease with time। फिर पेरेंट्स को लगा तो गड़बड़ हो गई, 11th-12 में टीचर ढूंढे कैसे, टू मेंटेन द रिजल्ट कांस्टेंट दे गेट एन एक्सटर्नल फोर्स, तो ट्यूशन टीचर लगा दिया, एक्सटर्नल फोर्स लगाएगा, बराबर है, एक्सटर्नल फोर्स हो गया जो आपको पढ़ाई में धक्का मारते रहे, एंड वो भी पीरियोडिक इन नेचर, हफ्ते में 2 बार 3 बार लेक्चर, ट्यूशन टीचर के 11th-12th में हफ्ते में 3 बार लेक्चर, 1 बार टेस्ट, 1 बार राइटिंग प्रैक्टिस, ये क्या हो गया, फिक्स टाइम इंटरवल पे सब अप्लाई होता है। टीचर तीन लेक्चर पढ़ाता है, फिर बाद में पकड़ता है, टेस्ट दिया, इतना कम स्कोर क्यों आया, चल फिर से लिखने बैठ जा, राइटिंग प्रैक्टिस कर, हर वीक में एक बार वो पकड़ेगा, टेस्ट लेगा एंड खकड़ाएगा। टीचर को भी पता है कि ये छोड़ दिया तो एम्प्लॉयड डैम्प्स, ऑसिलेशन डैम्प्स होता है। हमारे टीचर ने बोला इतना लिखते रहने का तुमको हर वीक में, पहले वीक टीचर ने चेक किया, हमने चलो सब करके दिया, दूसरे वीक टीचर ने चेक किया, हमने किया, फिर तीसरे टीचर ने बोला अब ये लोग लिख रहे हैं ना अपने आप, इससे टीचर पूछते नहीं है, तो क्या होता है, अब टीचर क्या पूछने वाला है, छोड़ो ना बाद में कर लेंगे, टीचर ने पूछा नहीं, चलो छोड़ो नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो धीरे धीरे ऑसिलेशन डैम्प हो रहा है, एम्पलीट्यूड कम होते जाता है। पर टीचर को पता लगे तो गड़बड़ वाला केस है, इसे टीचर ने फिर पीरियोडिक फोर्स लगा दिया, एवरी वीक टेस्ट होगी तो आप पढ़ाई करोगे, टेंशन में आओगे तो रिजल्ट बताना होगा, क्लियर। तो ये क्या हो गया, आपने खुद की नेचर पढ़ने की मेथड छोड़ के टीचर की मेथड को अपना लिया, अपनी नेचर फ्रीक्वेंसी छोड़ के अपने टीचर की फ्रीक्वेंसी अपना ली, कि हर एक वीक में 3 लेक्चर होते हैं, 3 लेक्चर टाइम पे पहुंच जाने का, उन्हीं लेक्चर का पढ़ने का, फिर टेस्ट होती है हर वीक में, तो टेस्ट को ही पढ़ने का और कुछ नहीं पढ़ने का। कल केमिस्ट्री के टेस्ट है, केमिस्ट्री की तैयारी करो, परसों फिजिक्स की टेस्ट है, फिजिक्स की तैयारी करो, मैथ्स के टेस्ट है, मैथ्स की तैयारी करो। अरे तुम खुद की तैयारी कब कर रहे हो, अपनी नेचुरल तैयारी तो है नहीं, ये तो सर ने टेस्ट लेना है इसलिए आप पढ़ रहे हो, सर ने होमवर्क मांगा है इसलिए आप लिख रहे हो, बाकी हमें कोई लिखने की इच्छा नहीं थी। अगर तुम पे छोड़ दिया जाए तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी वन ऑफ यू डज फील दिस, कि भाई अगर तुम पे छोड़ दिया जाए तो यू विल नॉट डू द वर्क, हो गए करते हैं क्या जल्दी है, सर कहाँ अभी पूछ लेने वाले, वो धीरे धीरे एम्पलीट्यूड डैम्प हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, ये वही डैम्प ऑसिलेशन का केस है। क्यों, रेजिस्टिव फोर्सेस है ना हमारे आसपास में, काफी रेजिस्टिव फोर्सेस है, सोशलाइजेशन करना होता है, सोशल मीडिया पे इंस्टा पे अपलोड करने का, डाउनलोड करने, दूसरों को लाइक करने का, फिर यूट्यूब पे नए नए वीडियोस देखने के और नया नॉलेज गेन करने का, पढ़ाई के अलावा सब कुछ करने का। ये डेविएशन है ना कि थोड़ा टाइम तो चाहिए, कुछ लोगों ने तो घर पे डिमांड करके रखे रोज 2 घंटे तो पबजी खेलूंगा ही, गेमिंग चलेगी 2 घंटे, नहीं तो मैं पढ़ाई नहीं करूंगा। वाईफाई का जमाना है, डेटा इजीली अवेलेबल है, इससे फटाफट काम पे लग जाते हैं, पेरेंट्स को पता भी नहीं होता, कई बार तो हम लोग खेल लेते हैं 2-3 घंटे, कई बार ट्यूशन में जाना होता है तो उसके आधे घंटे पहले पहुंच के नीचे आधा घंटा खेल लेते हैं। व्हाट आर दीज आर डेविएशंस, रेजिस्टिव फोर्सेस विद रिड्यूस एम्पलीट्यूड। टीचर को पता लगा तो टीचर धक्के मारना शुरू, पर उसमें होता क्या है, सिस्टम लीव्स इट्स ओन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड अचीव्स द फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स। एंड अगर टीचर की फ्रीक्वेंसी और अपनी नेचर फ्रीक्वेंसी दोनों में गैप ज्यादा रहा, यानी आपका नेचर पढ़ाई का मेथड और टीचर के पढ़ाने का मेथड में अगर गैप ज्यादा है तो ऑब्वियस एम्पलीट्यूड द स्कोरिंग विल गो डाउन। ट्यूनिंग ही नहीं आ रहा है टीचर के साथ तो स्कोरिंग डाउन जाएगा। पर अगर दोनों के बीच का गैप कम होगा, टीचर स्टूडेंट के बीच का गैप कम होगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। कम होकर मान लो एग्जैक्टली सेम हो जाए, तुम्हारे जैसे टीचर तूफानी है पढ़ाने में भी और खेलने में भी, तो आपको तो बहुत मजा आएगा, सर तो धमाल मस्ती भी कराते हैं और पढ़ाते भी हैं, तो दोनों का फ्रीक। मेरे को तो एवरी स्टूडेंट लाइक्स, बस चुपचाप किसी को नहीं पढ़ना है, बहुत सिंसियरली सीरियसली पढ़ने वाले बहुत कम बच्चे होते हैं। नॉर्मली व्हाट हैपेंस, यू लाइक कि टीचर साथ में जोक मारे, कुछ एग्जाम्पल दे, कुछ बाहर की बातें करें, कुछ नई नॉलेज की बातें करें, कुछ साथ साथ में पढ़ाए भी सही, तो फिर क्या होगा, आपके जैसा आपका टीचर हो जाए, दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो एम्पलीट्यूड गो वेरी हाई, स्कोरिंग बहुत हाई आता है। इट्स नॉट ओनली द एकेडमिक स्कोरिंग बट लाइफ में स्कोरिंग वैल्यूज ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये वही टीचर रेजोनेंस हो गया। तो आपके और आपके
एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स यानी कि टीचर के बीच में जितना गैप कम, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टडीज के हिसाब से जितना गैप कम जितना ट्यूनिंग उतना ट्यूनिंग ज्यादा, यानी कि रेजोनेंस का केस आ जाएगा, एम्पलीट्यूड विल इंक्रीज। क्लियर? इसीलिए हमेशा एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स ऐसा चुने जिसकी फ्रीक्वेंसी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जितनी हो, ताकि अपना स्कोर बढ़े। नहीं तो क्या होता है, गैप ज्यादा, सर तो खखड़ा खखड़ा करते हैं, जब देखो तब बोलबो करते हैं मारे जरूरत नहीं भणवा, क्या मतलब क्या। फिर भी पेरेंट बोलेंगे नहीं बहुत नामी टीचर, आपको तो वहीं पढ़ना है, नहीं मेरे को नहीं फाता है, वो चिल्लाते रहता है, बहुत काम देता है, ये करता है वो करता है, बहाने निकल जाते हैं। बराबर है? ये रीजन यही है कि फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, इसलिए एम्पलीट्यूड गोज डाउन। क्लियर? तो ये रेजोनेंस का केस है, ये सारा केस अपनी पढ़ाई के बारे में ही है, कुछ नया नहीं है अपने लिए, इट्स कंप्लीटली व्हाट वी एक्सपीरियंस। ओके, तो ये हो गया फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में। अब चलते हैं इसका डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन। नाउ लेट्स ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन। जो आगे दिया था डैम्प्ड ऑसिलेशन में वैसा ही केस है, ऑब्टेनिंग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन। सेम शुरुआत, फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी परफॉर्मिंग फोर्स्ड ऑसिलेशंस। पहला फोर्स वही एस प्योर एसएचएम का रिस्टोरिंग फोर्स, and that is given as minus kx। दूसरा फोर्स वही रेजिस्टिव फोर्स ऑपोजिंग नेचर वाला, and that is minus b into v, that is minus b dx by dt। तीसरा फोर्स यहाँ पे आएगा, एंटी मारेगा कौन, एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स, इन केस ऑफ फोर्स ऑसिलेशन ये भी प्रेजेंट होता है, एंड एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स गिवन एज f0 sin ओमेगा t। कॉस दिया था, चलो कॉस ओमेगा t लेते हैं, डजंट मैटर पीरियोडिक नेचर ये। ओके, एंड फिर therefore total force acting on system, total force acting on system F is equal to, अब ये टोटल फोर्स क्या लेंगे, F is equal to माइनस के एक्स माइनस बी डी एक्स बाई डी टी प्लस F0 cos ओमेगा टी। आप ध्यान से समझो, यहाँ पे दो फोर्स नेगेटिव है क्योंकि ऑपोजिंग इन नेचर, रिस्टोरिंग फोर्स को पकड़ के वापस जाता है, डैम्पिंग फोर्स को अपोज करता है, पर प्रोडक्ट फोर्स हेल्प करता है, एक्शन प्रोडक्ट फोर्स हेल्प करता है तो प्लस है। बराबर है? ये हमको फॉर्मूला में क्लियरली दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, F is equal to ma and that's m into d square x by dt square। ओके, ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 दोनों का इक्वेट कर देते हैं, दोनों फोर्स की फॉर्मूला, तो इक्वेटिंग 1 and 2 व्हाट वी गेट इज m into d square x by dt square is equal to minus kx minus b dx by dt plus f0 cos omega t। ओके, एक्स वाले सारे टर्म लेफ्ट साइड पे लेते हैं एंड वो भी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल में, तो m इंटू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस b इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस के एक्स इक्वल टू, इसमें x नहीं है तो इसको राइट साइड पे रहने दो, f0 cos ओमेगा टी। ओके, अब डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन बाय मास, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर को हमेशा अकेला छोड़ने का रिवाज है, इट्स अ ट्रेडिशन टू लीव हाईएस्ट ऑर्डर अलोन, तो ये m को यहाँ से निकालना पड़ेगा, तो डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय m व्हाट वी गेट इज डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस b बाई m डी एक्स बाई डी टी प्लस k बाई m इंटू एक्स is equal to f0 by m cos of omega t। ओके, अब ये k by m क्या होगा, तो we know that k is equal to m omega 0 square, तो therefore k by m will be omega 0 square, तो therefore d square x by dt plus b by m dx by dt plus omega 0 square x is equal to f0 अपॉन m cos of omega t। ओके, ये हो गया फॉर्मूला, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। द सॉल्यूशन हियर इज गिवन एज x इक्वल टू a cos omega t प्लस 5, यानी आप नॉर्मल SHM वाला फॉर्मूला हो गया।
यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए कितना होगा इस केस में, F0/m ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर होल रेज टू हाफ। ये एम को नीचे ले लो एंड अंदर घुसा दो, दैट बिकम्स लाइक दिस, ये इक्वेशन बन जाएगा। ओके अब ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला एंड द फाई डैश द इनिशियल फेज फॉर फोर्स्ड ऑसिलेशन इज गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ नेगेटिव v0 अपॉन ओमेगा x0। सर इन फॉर्मूला को तैयार करने का, हाँ थियरी लिखना हो, याद है जितना उतना लिखने का, वो ज्यादा टेंशन मत लो इसके बारे में। ये फॉर्मूला याद रखने का, वेयर ए इज गिवन बाय समथिंग समथिंग दे देने का। हाँ खास ध्यान रखो उसमें क्या दिखना चाहिए, एक तो ए इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर जो हमने लिया था यहाँ पे कि एम्पलीट्यूड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, एंड दूसरा डैम्पिंग कोएफिशिएंट, दो चीजें होनी चाहिए और इतना ध्यान रखने का, बाकी आप कुछ भी लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ न्यूमेरिकल्स में हम लोग कभी भी इस फॉर्मूला को यूज नहीं करने वाले, दिस फॉर्मूला नॉट टू बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स, सो बी एश्योर्ड, बी टेंसफुल, नो टेंशन, टेक नो टेंशन, दिस विल नेवर बी यूज्ड इन न्यूमेरिकल्स। क्लियर। अब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, इक्वेशन पर से एम्पलीट्यूड को देखो तो डिपेंड्स ऑन, एम्पलीट्यूड डिपेंड्स इनवर्सली ऑन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, वही नेचर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सट्रापोलेटिंग फोर्स, एंड सेकेंडली इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द डैम्पिंग कोएफिशिएंट आल्सो। अगर मान लो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो ये तो गायब, खाली यही बचेगा, रूट है से ओमेगा बी बाय एम बचेगा, बराबर है। तो एम तो कैंसिल हो गया तो F0 अपॉन ओमेगा बी हो जाएगा उस केस में, व्हेन दिस बिकम 0 F0 अपॉन ओमेगा, एंड आल्सो सेकेंडली अगर डैम्पिंग फोर्स भी एब्सेंट है तो ये भी 0 हो गया। तो मतलब क्या हुआ, एम्पलीट्यूड टेंड्स टू इंफिनिटी, क्योंकि नीचे 0 हो गया कंप्लीटली, एम्पलीट्यूड टेंड्स टू इंफिनिटी, तो डैम्पिंग फोर्स भी नहीं है, एज वेल एज दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए तो एम्पलीट्यूड बिकम्स वेरी लार्ज एंड दैट्स कॉल्ड द फेनोमेनन कॉल्ड रेजोनेंस। ओके, इन दोनों के डिफरेंस पर डिपेंड है, एक्सटर्नल की फ्रीक्वेंसी फोर्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो या कम हो, जब दोनों मैच होगी तभी हाईएस्ट होगा। इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखते हैं, तो ग्राफिकली कैन बी शोन दिस वे, ग्राफ ऑफ एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसीज। ये ग्राफ लेते हैं, यहां पे एम्पलीट्यूड ले रहे हैं, यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, किसकी, एक्सटर्नल फोर्स की। एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ 0 से, एम्पलीट्यूड बढ़ता जाता है क्योंकि डिफरेंस धीरे धीरे कम हो रहा है, बढ़ के बिकम्स मैक्सिमम एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। ये मैक्सिमम कहां पे हुआ, जब ओमेगा बिकम्स इक्वल टू ओमेगा 0, तभी एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा। बाकी आप एंगुलर फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फोर्स की ओमेगा 0 से ज्यादा रखो या कम रखो, एम्पलीट्यूड भी स्मॉलर। ओमेगा 0 से ज्यादा रखो या कम रखो, जितना गैप ज्यादा होगा उतना एम्पलीट्यूड कम मिलेगा, जितना गैप कम होगा एम्पलीट्यूड ज्यादा मिलेगा। ओके, तो थंब रूल क्या है, एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी अगर नेचर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर तो मैच हो जाए तो काम हो जाएगा। इसलिए आपने नोट किया होगा कि आपके ट्यूशन में जब भी सर आपको मिलते हैं तो हर एक के साथ उनका अलग अलग बिहेवियर होता है। कोई सीरियस सिंसियर स्टूडेंट है तो उसके साथ सिंसियरली बात करेंगे, ज्यादा तूफान मस्ती नहीं करेंगे क्योंकि पता है ये शांत बंदा है, इसके मजाक मस्ती नहीं कर सकते क्योंकि ये पढ़ाई में ज्यादा ओरिएंटेड है। कुछ स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ साथ धमाल मस्ती भी चाहिए, उनको बस दे वांट सम लिटिल बिट एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट। क्यों, ओनली पढ़ाई इज बोरिंग फॉर देम, तो उसके साथ सर को थोड़ा धमाल मस्ती भी करना पड़ेगा। क्यों, तो फ्रीक्वेंसी मैच होगी, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो उसका लर्निंग बढ़ेगा। तो वो फ्रीक्वेंसी सिंसियर स्टूडेंट के साथ मैच ना भी हो तो हर एक के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, हर एक के साथ मैचिंग करना पड़ेगा। तो सर को इसीलिए क्लास में पढ़ाने वाले टीचर को हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के अपने बिहेवियर को पर्सन टू पर्सन चेंज करना पड़ता है। बोलते हैं ना कि एक ही लकड़ी से सबको नहीं चला सकते, क्यों, क्योंकि हर एक का नेचर अलग है, हर एक का पढ़ने का मेथड अलग है, एंड दैट्स व्हाट रेजोनेंस टीचेस अस। क्लियर, ये हो गया रेजोनेंस के लिए। यहाँ पे जो टॉप में ला इस पोजीशन को बोलेंगे रेजोनेंस। एंड कब होगा, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हुआ है, कब हुआ, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 पे। क्लियर। रेजोनेंस के बहुत सारे केसेस हैं कि भाई पुराने जमाने में सोल्जर जब पास मूव करते थे तो एक माउंटेन से दूसरे माउंटेन जाना तो पूरा माउंटेन उतर के दूसरा पूरा माउंटेन चढ़ने का, ऐसा तो होता नहीं है। तो क्या होता था, एक माउंटेन के और दूसरे माउंटेन के बीच में ऐसे ब्रिजेस बनाए जाते थे, सस्पेंडेड ब्रिजेस, जिनके कोई पिलर्स नहीं होते थे। अब ये ब्रिजेस जैसे लक्ष्मण झूला है वैसा, तो ये ब्रिजेस सस्पेंडेड ब्रिजेस है, पार्टियां लगा के बनाए होते हैं। अब ये ब्रिज जो हैंगिंग ब्रिज है, सस्पेंडेड ब्रिज है, उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, ब्रिज की ऑसिलेशन की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अब जब सोल्जर उसके ऊपर से मार्च पास कर रहे हो, सोल्जर इस पर से मार्च पास कर रहे हो,
तो सोल्जर्स का मार्च पास भी एक परफेक्ट फ्रीक्वेंसी होता है, तो दैट मार्च पास ऑफ द सोल्जर्स बिकम्स एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स फॉर द ब्रिज। अगर मान लो दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, मार्च पास ऑफ सोल्जर्स की ब्रिज की नेचर फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, टेम्परेचर ऑसिलेशन बढ़ेगा, ब्रिज का टेम्परेचर ऑसिलेशन बढ़ेगा तो ज्यादा हिलम डुलम ब्रिज ब्रेक्स, तो ब्रिज कोलैप्स हो सकता है, तो ऐसे केस में बी डेंजरस। इसीलिए whenever soldiers cross over a bridge they are ordered to break their steps, the soldiers are ordered to break their steps while crossing a bridge। क्यों? क्योंकि अगर उन सोल्जर स्टेप ब्रेक करेंगे तो फिर एक्सटर्नल फोर्स रहेगा पर पीरियोडिक नहीं होगा, तो फ्रीक्वेंसी मैच होने का सवाल नहीं है, रेजोनेंस होने का सवाल नहीं है। इवन इट इज फाउंड दैट अगर मान लो सोल्जर्स नहीं है तो माइल्ड एयर ब्लोइंग, अब एयर की भी अपनी वेव फॉर्म है, इसलिए उसकी फ्रीक्वेंसी होती है वो और ये नेचर फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो गए तो ब्रिज ब्रेक हो सकता है। इवन अ माइल्ड एयर having frequency nearly equal to that of the bridge can break the bridge and that's called resonance phenomenon। ऐसा लंदन में एक बार हुआ, लंदन का एक ब्रिज फॉल हुआ ऐसे ड्यू टू माइल्ड एयर। ओके, तो ये भी सिचुएशन है। इवन जब भी साइक्लोन्स आते हैं तो कई बार बड़े बड़े ट्रीज अप्रूट हो जाते हैं, छोटे छोटे पौधे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि एवरी प्लांट स्मॉलर और बिगर हैज इट्स ओन नेचर फ्रीक्वेंसी एंड साइक्लोन है वर्लिंग विंड्स उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी, तो वर्लिंग विंड्स ऑफ साइक्लोन बिकम्स द एक्सटर्नल प्रोडक्ट फोर्स फॉर द ट्रीज एंड द प्लांट्स। अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन ऑफ द प्लांट विल बिकम मोर। अब बड़े ट्रीज के साथ मैच हो जाता है तो बड़ी ट्रीज का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है तो उखड़ के नीचे, एंड छोटी ट्रीज का मैच नहीं होता तो नहीं गिरते, बराबर है। इवन इन ड्यूरिंग अर्थक्वेक में अंडरग्राउंड वेव्स आती है, सिस्मिक वेव्स आती हैं, उनकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। बड़े बड़ी बिल्डिंग है, छोटे छोटे मकान भी है, तो जब वो वेव आता है तो बड़े बिल्डिंग के फ्रीक्वेंसी नेचर फ्रीक्वेंसी अगर मैच हो गए तो बड़ा बिल्डिंग डाउन, छोटे छोटे मकान अगर नहीं होते हैं तो बच जाते हैं। तो वी फाइंड दैट ड्यूरिंग अर्थक्वेक मेनी टाइम टॉल बिल्डिंग्स फॉल डाउन बट छोटे छोटे बिल्डिंग बच जाते हैं, ये छोटे छोटे मकान बच जाते हैं। द रीजन अगेन आर रेजोनेंस। क्लियर? तो देयर आर नॉट मेनी केस ऑफ रेजोनेंस। ओके, तो ये हो गया रिगार्डिंग रेजोनेंस। थोड़े एग्जांपल नोट्स में भी दिए हुए हैं इंफॉर्मेशन के बेस पर से, प्लीज गो थ्रू देम, इट्स प्योरली इंफॉर्मेटिव। ओके, so that completes the study of forced oscillations also.